The traditional khatabs. Sir, I request you once again to please welcome Shri Ghulam Muhammad Sir, ADC Sir, with the traditional khatabs. Welcome, sir. I now request Madam Padmangmo, AD Tourism Lay, to please present the traditional khatabs to our expert speakers. Professor Manzoor Malik, Physics Department, University of Kashmir. Dr. V. Girish, Deputy Director, Science Program Office, ISRO. Welcome, sir. Shri Dorje Angchuk, Engineer in Charge, IAO, IIA. Shri Punsuk Dorje, TIFR, and Shri Thevang Sanjan, IIA. TIFR on X-ray studies of catalytic variables. He joined ISRO in 2003. He serves as Deputy Director at ISRO's Science Program Office. On behalf of the Department of Tourism, UT Ladakh and Ladakh Autonomous Hill Development Council Leh, I warmly welcome you all to the first ever Astro Festival, Ladakh Astro Festival 2025, being organized in collaboration with Indian Institute of Astrophysics. This festival is not just an event, it is a celebration of the cosmos, of the beautiful skies, night skies of Ladakh, and for Ladakh being a unique in itself as a destination of astrotourism. As we all are aware that Ladakh with high altitude landscape and clear night skies offers a natural observatory, which is amongst the one of the places, and there's no match. Only few places can match to this level. I extend my warm welcome to our chief guest, Shri Tsering Angchuk, Honorable Deputy Chairman, Ladakh Autonomous Hill Development Council Leh. I heartily welcome Shri Romil Singh Dong, IAS, Deputy Commissioner, CEO, Ladakh Autonomous Hill Development Council Leh, who will be joining us shortly. And a warm welcome to Professor Manzoor Malik, Physics Department, University of Kashmir. Hearty welcome to Dr. V. Girish, Deputy Director, Science Program Office, ISRO. Warm welcome to Shri Dorje Angchuk, Engineer in Charge, Indian Astronomical Observatory, IIA, and team member. I'm so sorry, sir. A warm welcome to Shri Ghulam Muhammad, ADC Leh. And a warm welcome to officers and officials of district and UT level. Warm welcome to friends from media, and most importantly, a hearty and warm welcome to all the students and tourists who have come across India and from all over the world. Kaladring Lena, the first time Ladakh Astro Festival stays at the Ladakh Shipman. Kasa Dring na Touring is Komata Astro Festival. Yanagata Skarma Indo Yan Namna Chiyo Nangala. Skarma no Mata Dawat Kyak, Nima Kyak, Tenazom Manazok, Chalakma Nato Mampo Kapayale. Kaungata Mikna Tomit. Skarmana Dawan and Yima Kachimata Tomero. Tenazo Yang Chalakma Potiok. Then Ngata Chichita Alek and Ngata Observatory Center Row, Astronomy Observatory Center Row Yut Patana. Tuna Delhi, Ngata Jalakma Mampega Calypso, Namal touches appear.
tene tyo na nyampo ngata ngistong issues chakni sana mata UT administration ne alle wo dark sky reserve jo sana wala dark sky reserve jona chanla kirtana ot mana ngata mituk ches cha jana alle ka te kyak ngata namu luang na mang charik pal sumga tukchu rai na sumga tukchu chokshin kanta aka lakma lusut kyak tepia observatory center ronde ga nok tache za ko tama pa tene tourism ma aka ko lepches pia tourism la attract ma cheches la namal taches la tene astro tourism champion na teka ko chuches pia dark sky reserve chosen oile tene dark sky reserve nang ko ngata light nyun sang nyun ngata aka light tukches cha jana ngata namo light metal lose na ngata taches la salpot cheno oile teo chichi gino tene ngata daksa chakpa chamsi ka chalak infrastructure chamsi development se tala te celebration mandring ega josano teo na nyampo aka chakla zatkan tene te technology chokan sangmala scientist ma yala mangpo kya tene khongmone mingone ka ngata I chala kun choches piadri jak porsis no tene iu ngata gomek ngata gyara gomek season oila dark sky century wo ngata first in India no tene nyampo dri festival lo igar season no tene iga lega chi fit no denal yang jaga ji kang sei ngyan jesu Bangalore ngyan Delhi ngyan jesu no te lega ches bote pe demo no yang jaga ji na ngata te emotion mo te ethics bo te changma yo mo no iga chi samma inne ga yot patana te pia ata lega ches bo takcha jesu no tene iu goma no tene phalanga ta sinji dukche no iga na te julon mo zamling ga pache jesu no leka ngata I festival jana ngata chamshik nyan na skarmal takanndo ya astro ko new dollar enthusiasm mi su astro ko la use changin te samma ngata attract choches pia te samma mi samma ga lepches pia ngata I julun jang no tene tyo na nyam pa ngatang ladak pa changme fia ma hapak sepsera no kala iu chajuna ladak la mina ngata demek chuse yorang bet yak zamling ko pena isuko nam lakmona nam salpo नमस्ते तो फर्स्ट लद्दाख एस्ट्रो फेस्टिवल 2025 यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसमें प्रोग्राम्स जो है दिन में पॉपुलर टॉक्स है जिसमें चंद्रयान के बारे में बताया जाएगा, यूनिवर्स कैसे फॉर्म किया जाएगा। हमने एक्सपर्ट्स इसरो से, कश्मीर यूनिवर्सिटी से बुलाए हैं और इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से भी एक्सपर्ट्स टॉक्स हैं। तो और इसके सिवाय दिन में हमारे पास स्टॉल्स हैं, फ़ोटो एग्जीबिशंस हैं और यहाँ पे हम सोलर सनस्पॉट्स भी दिखा रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग इवेंट जो होगा नाइट स्काई गेजिंग होगा जो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख कैंपस में तारू में होगा। तो यहाँ पे हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि हाल में हमने 2 बार स्टार पार्टी किया, वहाँ पे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो वहाँ पे करीबन 3 दिन में 500-600 रुपये लोग आए जो वहाँ पे देखने के लिए। तो हमने सोचा क्योंकि ये ऑर्गेनाइज़ करना हाल में बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो हमने सोचा कि क्यों ना लेह में दिखाया जाए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लद्दाख में कहीं पे भी आप चले जाओ आपको स्टार्स बहुत अच्छे दिखेंगे, लैंडस्केप भी बहुत अच्छा है। तो उसको हम कम्बिनेशन बोलते हैं नाइटस्केप। तो नाइटस्केप बहुत ही अच्छा दिखता है। तो ये हम उसको पॉपुलराइज़ करने के लिए जो आजकल जो एस्ट्रो टूरिज़्म है, जो मोस्ट ऑफ द अपकमिंग टूरिज़्म फॉर्म है, तो उसको हम बढ़ावा देने के लिए हमने ये फेस्टिवल यहाँ ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये किया है, हमने इनिशिएट किया है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म लद्दाख और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर के बीच में कोलैबोरेशन है। और इससे हमें लगता है कि मतलब बहुत सारे लोग एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोनॉमी किस तरह से हम लोग कनेक्टेड थे वो सब पता चल जाएगा। और वो सब हम लोग चाहते हैं कि वो सब हम धीरे धीरे स्टार्स को अप्रिशिएट करना वापस ले आए। थैंक यू। लद्दाख एस्ट्रो फेस्टिवल इस बार फर्स्ट टाइम मनाया जा रहा है, तो ये एनुअली देखने को मिलेगा कि इस साल ही होगा ये? हम लोग हमारा पूरा कोशिश है क्योंकि फर्स्ट एस्ट्रो फेस्टिवल है तो इसको हर साल के कैलेंडर में फिट किया जाए। तो इस टाइम हमारे पास टाइम लिमिटेड कम था, फिर भी हम लोगों ने अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया। तो दर्शकों या जो भी लेह लद्दाख में है तो आप सब लोग इधर आके एंजॉय करें नाइट स्काई को, और ये कंटिन्यूस रहेगा हर साल।
एस्ट्रो फेस्टिवल। डेट्स फिक्स हो सकते हैं सर? डेट्स हम लोग ने पहले से ही कोशिश किया था कि ये मई जून में हो जाए, मई या क्योंकि एज ए समर फेस्टिवल, क्योंकि विंटर फेस्टिवल ऑलरेडी हम लोग हालने में स्टार पार्टी के तौर पे मनाते हैं, तो ये मई जून में हो सकता है और ये न्यू मून पीरियड पे ही होगा। आज से यहाँ पर 2 दिन का या फर्स्ट टाइम ये 2 दिन का होगा, 27 एंड 28 जून। अगर किसी को इंटरेस्ट होगा सर, ये कोई स्पेसिफिक सीज़न होता है कि स्टार गेजिंग के लिए हर सीज़न में ये लद्दाख में देखने के लिए मिलेगा? हाँ, ये बहुत ही हमारे पास एक लोकेशन का एडवांटेज है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ही कम ड्राई एरिया है, क्लाउड मूवमेंट कम है, तो बारिश कम होता है, इसलिए लद्दाख में क्लाउड फ्री नाइट्स बहुत रहता है। तो हम जैसे कि अभी जून में ऑल ओवर इंडिया मानसून चल रहा है, फिर भी हम यहाँ पे स्टार्स दिखा सकते हैं, ऑब्जर्वेटरी हमारा चल रहा है, एस्ट्रोनॉमी चल रहा है, तो ये एक एडिट एडवांटेज है और लद्दाख में तो हमेशा रहेगा ही ये। और सर हमेशा लोकेशन ले रहेगा या हनले में भी होगा सर? ये समर वाला हम लोग चाहेंगे ले में ही रहे, क्योंकि अदरवाइज़ लॉजिस्टिक वाइज हालने में 2 फेस्टिवल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। टूरिस्ट आएंगे भी तो वो हाई एल्टीट्यूड ये वो सिकनेस हो जाता है, तो इसकी वजह से ले में ही रखना चाहेंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसका ना अनले ड्रग्स का एक स्पेसिफिकली और प्रमोट कर रहा है, और ये एस्ट्रो टूरिज्म का ज़्यादातर फोकस है। इसके बारे में आप क्या करेंगे, क्या बोलेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या चल रहा है इसका प्रमोशन के लिए? यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि मतलब पहले से ही रहा है। जब से हमने हानले डार्क्स का इनिशिएटिव लिया तो उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, और ये बिना कोलैबोरेशन, एक तो गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन, एक तो पीपल्स कोलैबोरेशन, जो लोकल्स का कोलैबोरेशन, और भी हम लोग जो है टेक्निकल पार्टनर, ये तीनों जब कोलैबोरेट करके नहीं चलेंगे तब तक हमें ये सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसमें बहुत अच्छा है। तो हम लोग वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ स्टार पार्टी हानले में विंटर वाला करते हैं, ताकि अब यूटी टूरिज़्म के साथ समर स्टार पार्टी हम ले में कर रहे हैं। पहले 5 साल पहले तो ये एस्ट्रोफिजिक्स करना ऑब्जर्वेटरी के तौर पर ही हमें पता चलते थे। अभी तो इसका ऑब्जर्वेटरी में बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए, इसके बारे में थोड़ा एलोबरेट करेंगे? या बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं हानले डार्क्स का इनिशिएटिव में, ये एक हम बोलते हैं यूनिक साइंस ड्रिवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल दो। हानले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स 25 साल पहले आया, तो हम लोग एक इंट्यूटर की तरह थे। तो हमने देखा कि विलेजर्स सोच रहे थे ये लोग हमारे जगह पे बैठ गए हैं, तो हम लोग चाहते थे कि विलेजर्स को भी बेनिफिट हो। तो इसलिए हम लोग ने जब ये हानले डार्क स्काई रिजर्व के बारे में सोचा, तो हमने सोचा विलेजर्स को क्या बेनिफिट मिलेगा। तो हम सबसे पहले विलेजर्स से मिले, उनको कहा कि इसको हानले डार्क स्काई रिजर्व बनाएंगे तो कितना लोकल पॉपुलेशन को फ़ायदा होगा, और उस हिसाब से वो लोग सबसे पहले मान गए। फिर हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, जिन्होंने गो अहेड दिया और जिन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। तो उसके बाद अभी एक कोलेटरल बेनिफिट है, जो बहुत लोकल कम्युनिटीज़ साथ में लेके चल रहे हैं, साइंस भी इसके साथ, एस्ट्रोनॉमी भी साथ चल रहा है। तो मैं मानता हूँ ये एक विन विन सॉल्यूशन है, जो मतलब हम और लद्दाख में और भी हम जगह बना सकते हैं। लोकल इकोनॉमी को फ़ायदा मिल रहा है? लोकल इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा मिल रहा है इसमें। मतलब मैंने अपना 25-26 ईयर्स एक्सपीरियंस में ये देखा, 20 साल या 2020 तक मैंने देखा, हानले में जितने भी एजुकेटेड है वो लोग आते नहीं थे। अभी जब हानले डार्क स्काई रिजर्व बन रहा है, सब लोग वापस कमिंग बैक टू द विलेज वो आना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन जो हमने देखा है। मैम, ये फर्स्ट लद्दाख एस्ट्रो फेस्टिवल ले में मनाया जा रहा है, उसमें आप टूरिज्म डिपार्टमेंट भी एक कोलैबोरेशन में है, आप टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू में क्या कहेंगे मैम? सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप हमारी इनविटेशन पे यहाँ पे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि ये लद्दाख एस्ट्रो फेस्टिवल 2025 फर्स्ट टाइम के लिए यहाँ पे सेलिब्रेट होने जा रहे हैं। जब हम कैलेंडर इन्वेस्टाज कर रहे थे 2025 का, तो हम ये सोच रहे थे कि जो कैलेंडर है हमारे इवेंट का वो वाइब्रेंट हो, डाइवर्स हो, ताकि अलग अलग टाइम पे टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़े। तो इसी को इन्वेस्टाज करते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स से भी हमें फीडबैक आया, और हमारे
CEC साहब, ऑनरेबल CEC साहब के चेयरमैनशिप में और हमारे विक्रम साहब और सेक्रेटरी विक्रम साहब और डायरेक्टर मैम के चेयरमैनशिप में हमारा डेलिब्रेशन हुआ, जिसमें ये हमने फिर डिसाइड किया कि एस्ट्रो फेस्टिवल होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि लद्दाख एक ऐसा जगह है जहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड लैंडस्केप है और साथ साथ में लद्दाख माना हुआ जाता है क्लियर नाइट स्काइज़ के लिए। तो यही सोच के कि क्यों ना इस यूनिक जो फीचर है उसका फ़ायदा उठाया जाए और टूरिस्ट को हम अट्रैक्ट करें और लद्दाख को एज अ एस्ट्रो टूरिज़म डेस्टिनेशन के तौर पे प्रमोट किया जाए। इस थॉट को इन्वर्सर्च करते हुए हमारे कैलेंडर में वन ऑफ द इवेंट्स जो पॉपुलर इवेंट मुझे लगता है कि आने वाले सालों में होगा, तो इसको हमने अप्रूव हमारे सेक्रेटेरिएट लेवल से अप्रूव हुआ है।